गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी मेंस और उसमें भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है वी विल बी स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन दैट फॉर दिस मॉड्यूल। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? Cryptocurrency is a digital or virtual currency that uses cryptography for security and operates on a decentralized network based on blockchain technology. So basically, cryptocurrency is a type of money that only exists in digital form, and you can't touch it or see it physically like a 500 rupee note, but we can use it to buy things or send to someone over the internet. Means it is a currency but not in a physical form. Currency in form of soft copies maybe. ठीक है, a digital currency. It's virtual. It means that we cannot actually touch it. We can see it, but we cannot actually touch it. It is like one kind of intangible asset. ठीक है. So basically, cryptocurrency is a software. What makes cryptocurrency special? See, for transacting cryptocurrencies, we don't need any banks. Okay, we can send it directly to someone else through our phone or through any software. We can just transfer cryptocurrency. It is very secure. It uses very strong codes. Such codes are called cryptography. It keeps your money safe. Another thing that makes it special is that it works anywhere. That is, we can send cryptocurrency to anyone in the world quickly and easily. And that I am in control. When we are transacting with cryptocurrency, we don't have interference from any external agency like RBI or any central bank of any nation. So we are here in control whenever we are transacting in cryptocurrency. So we are just controlling. Only we have access to our money and not even the government or any bank. So let's discuss some of the key features of cryptocurrency. One of the most important features of cryptocurrency is that it is decentralized. What is the meaning? So decentralized मतलब होता है कि this is not controlled by any central authority like a central bank. Okay. कोई regulatory body नहीं होती है. People like us, me and you, we control this flow of cryptocurrency. Another feature is that is digital or virtual, that does not exist in physical form, and it exists only in electronic form. So no physical counterpart is present there. ठीक है. This is blockchain based. Transactions are recorded in a distributed ledger. So what is a distributed ledger and what is blockchain? हम लोग इसे भी बाद में डिटेल में समझेंगे. So this cryptocurrency's next feature is that it is immutable. Means once a transaction is recorded on the blockchain, it cannot be altered. एक बार जो transaction record हो गई, so no any external agency or let us call any external or internal, कोई भी इसको change नहीं कर सकता. It's immutable. Then again it is pseudonymous. Cryptocurrencies are pseudonymous. Transactions are linked to wallet addresses and not real world identities. So because of only these features, anonymity, immutability based on digital ledger, cryptocurrency अभी हाल फिलहाल में recently has gained much buzz around the world. और अभी अब big institutions have also started using cryptocurrencies. Another feature is that it is borderless and can be transferred globally without the need for bank or intermediaries. Now let's see what is blockchain technology. So blockchain is the underlying technology for most cryptocurrencies, acting as a secure, decentralized ledger. It uses a proof of work or proof of stake mechanism to verify and record transactions. Blockchain is just like a super secure and shared digital notebook that records information in a way that nobody can cheat or erase. This is perfect for building trust without needing any middleman like a bank. तो बैंक की जरूरत नहीं होती है ब्लॉकचेन मेंटेन करने के लिए. People mention blockchains within themselves since one of the technology of blockchain is
its immutability, means no one can alter the details once entered in a blockchain. So that's why this blockchain technology is special, and our cryptocurrency is recorded on this blockchain technology. So just imagine a notebook, okay, which is shared with everyone, updated in real time, and that is impossible to erase or cheat. So that's basically what a blockchain is. It is a digital ledger, a record book that keeps track of things like money, data or transaction in a safe, open and permanent way. It is open to all, means everyone can see what is being recorded in our digital ledger. Okay, everyone can see, but no one can alter. That's why it is safe. And it's also immutable, that's why it is permanent. Means once a certain transaction is recorded or any record is recorded in this digital notebook, it cannot be altered. So that's what a blockchain is. So let's understand how does blockchain technology work. Let's take an example that you and your friends, we are sharing cupcakes and we are maintaining track of those cupcake trades. There are 5 friends, but instead of writing in their own notebook, we all agree to use one shared notebook to write down every cupcake trade. Okay, ये cupcakes का trade कर रहे हैं हम लोग. You and your 5 friends are there. They are trading cupcakes, but they are not recording these trades in their individual notebooks. We have a common shared notebook. Okay. So someone makes a trade. Let's take for example, Ria is there, and Ria gives 2 cupcakes to Aman, and we all write in that notebook, Ria gives Aman 2 cupcakes. So like this, 1, 2, 3, 4, 10 trades are written. And when 10 trades are written, they form a block, and this page of 10 trades is a block. Once one block information is completed, लॉक दिस पेज विथ ए स्पेशल कोड. एक स्पेशल कोड के साथ हम लोग उस पेज को लॉक कर देते हैं, एंड इट्स यूनिक फिंगरप्रिंट इज क्रिएटेड. इट इज कॉल्ड ए हैश. सो वंस 10 ट्रेड्स आर एंटर्ड इन ए वन पेज ऑफ दैट notebook, it is logged and it is hashed, means it is fingerprinted, and this process is called hashed. And the next page starts with the previous page's code. So each page is actually linked to the one before it, forming a chain. So एक पेज में 10 ट्रेड जब रिकॉर्ड हो गया, उसको हमने लॉक कर दिया, और एक लॉक का हमने कोड दे दिया. दैट कोड देने के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हैश्ड, बीइंग हैश्ड. ओके, तो जब हमने हैश कर दिया किसी भी एक पेज के ब्लॉकचेन को, देन दैट इंफॉर्मेशन इज लॉक्ड, नो वन कैन चेंज. ओके, तो एक एक ब्लॉक को ऐसे ही हम लोग हैश करते जाएंगे, और जो नेक्स्ट ब्लॉक जब इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, रिकॉर्ड करना जब हम लोग नेक्स्ट ब्लॉक में स्टार्ट करेंगे, सो इट विल स्टार्ट विद द इंफॉर्मेशन, वट एवर द फाइनल इंफॉर्मेशन देयर इज इन द प्रीवियस block, that will be carried forward to the fresh block. So ultimately this will form a chain, and that chain will know that chain as blockchain. Okay, so everyone has a copy of this blockchain, so no one can secretly change the trade because everyone will notice. Okay. Let's see a simple analogy here. Blockchain is like a Google Sheet that everyone can see, everyone updates together, but no one can delete or change past data. तो सब लोग देख सकते हैं, सब लोग एक साथ अपडेट भी करेंगे, और एक बार अगर वो फाइनली अपडेट हो गई, उसमें जो भी डेटा हमने उसमें डाला, अगर वो एक बार अपडेट हो गई, सो नो वन कैन चेंज और डिलीट दैट डेटा. ठीक है. So why is this blockchain special? Now we'll see some features of this blockchain and why this blockchain is special. What are its characteristics? So blockchain is again very secure. Why? क्योंकि हर एक ब्लॉक जो है is connected to previous one. Changing one block breaks the whole chain. This blockchain is shared with everyone. Everyone in the group or network has the same copy. This blockchain is transparent. Anyone can see the entries. Nothing is hidden, and no erasing.
One can only add new records but cannot change or delete any past ones. So that these all features, security, it can be shared, blockchain is again transparent, and one cannot erase whatever once written in gets written in blockchain. So all these features makes blockchain very special. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा will see what is cryptocurrency mining. So mining is the process of creating new coins like Bitcoin and verifying transactions on a cryptocurrency network, just like a digital accountant writing entries into a super secure notebook. So we all have heard about this cryptocurrency mining कि क्रिप्टोकरेंसी को माइन किया जाता है, बिटकॉइन को माइन करते हैं, बट दिस माइनिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो माइनिंग हम लोग सुनते आए हैं इन आवर ट्रेडिशनल टर्म्स. यहाँ पे माइनिंग मीन्स द मैथमेटिशियंस जस्ट ट्राई टू सॉल्व ए पजल. दिस माइनिंग इज एक्चुअली सॉल्विंग ए पजल. ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक दिस. Imagine the cryptocurrency network is like a giant math competition. A math competition is going on. There is a difficult puzzle, a math problem that needs to be solved. And many people around the world are racing to solve it. So these people, those who are racing to solve this puzzle, they are called miners. And the first one to solve it gets a reward. What is the reward? Some new cryptocurrency coins. So once solved, that miners gets to add a new page or what we call in technical terms एक block to the public record book blockchain. ठीक है, तो कोई एक मैथ पजल है, वंस जब वो पजल कोई भी सॉल्व कर लेगा तो उसे रिवार्ड में एक क्रिप्टो करेंसी मिलती है. हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दैट बिटकॉइन, और वो बिटकॉइन जब उसे रिवार्ड में मिलेगी तो दिस रिकॉर्ड of miner solving the puzzle and getting the Bitcoin as reward will be recorded in a digital blockchain. So it's recorded there. A Bitcoin has been created through the process of mining and it has been recorded in the blockchain. So a new Bitcoin gets created in this way. All this process is called cryptocurrency mining. Let's understand in a step-by-step way why it is called mining. See, just like gold miners, जैसे सोने की खदानों में लोग सोना खोद कर निकालते हैं, gold miners dig through tons of earth to find gold. So crypto miners use powerful computers. ठीक है, they dig through math problems and find digital coins as rewards. Step by step इसे we will try to understand. Someone makes a transaction. Example, Alice sends 1 Bitcoin to Bob. This information needs to be checked and saved on the blockchain. Then miners collect a bunch of these transactions and they gather them into a group called a block, like a page in the ledger. ये सारे transactions के वो लोग एक block form में record करेंगे. Then again they race to solve a puzzle. And this puzzle is very hard and takes lot of computer power. They try billions of guesses until one computer finds the right answer. तो आपने सुना होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी माइनर्स होते हैं, दे यूज लॉट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटिंग पावर्स, लॉट ऑफ सर्वर्स टू क्रिएट वन सिंगल बिटकॉइन. सो वंस एनी कंप्यूटर फाइंड्स द राइट आंसर, मीन्स पजल इज सॉल्व्ड, देन विनर एड्स द ब्लॉक टू द ब्लॉकचेन. व्हाट डज दिस विनर गेट्स? ही गेट्स द राइट टू ऐड द ब्लॉक, वेरीफाई एंड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन. द विनर हैज द राइट नाउ टू, जब एक कोई जिसने भी पजल सॉल्व किया, ही विल नाउ गेट द राइट टू ऐड ए ब्लॉक इन दैट ब्लॉकचेन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी. अगर हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन को एग्जांपल में ले, तो जैसे ही जो माइनर है जिन्होंने पजल सॉल्व किया और एक रिवार्ड में जब उसे एक बिटकॉइन मिली, सो नाउ ही विल हैव द अथॉरिटी टू रिकॉर्ड दैट बिटकॉइन इन दैट डिजिटल लेजर. ठीक है, so after this recording is complete, the process repeats every 10 minutes in Bitcoin case. So this is what cryptocurrency mining looks like. ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है what we have just seen. तो इस माइनिंग के लिए क्या क्या टूल्स यूज होते हैं? देयर इज माइनिंग हार्डवेयर. तो माइनिंग हार्डवेयर में क्या क्या है? सुपर फास्ट कंप्यूटर्स लाइक
ASICs, GPU, mining softwares are used, program that do lot of puzzle solving, and that huge electricity is consumed for mining. So that's why mining is not like everyone's cup of tea. It's not very easy. इसमें huge amount of electricity is consumed. ठीक है, तो आप देखेंगे कि जहाँ पे भी माइनिंग हो रही है, दे आर यूजिंग लॉट ऑफ पावर. So there are some downsides of mining also. One we have already discussed. There is huge electricity use. That means mining is not very eco-friendly. Mining is very expensive. ठीक है, अगर आपको बिटकॉइन मिल गई लास्ट में तब तो ठीक है, अदरवाइज इफ़ यू आर जस्ट इन द प्रोसेस तो आपको बहुत सारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यू हैव टू अरेंज एंड दैट टेक्स लॉट ऑफ कॉस्ट. इट्स गेटिंग हार्डर. पजल गेट्स मोर डिफिकल्ट एज मोर पीपल माइन. तो जितने ज़्यादा लोग पजल सॉल्व करने आएंगे तो पजल गेट्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट. एंड नाउ अभी अब इंडिविजुअल्स, अब ये माइनिंग करना बहुत कम हो गया है. नाउ बिग कंपनीज do this mining, not home users. So these are some of the downsides of mining. Now we'll look after some facts which are important from exam point of view. हालांकि हमने जो भी डिस्कस किया to make your understanding clear, that's also important from exam point of view. लेकिन जब हम मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, so we have to take care of some subjective aspects like why the cryptocurrency is important for the global economy. Okay, how it can be a threat to a global economy, whether it is a threat or it is a boon to the economy. So all these things we will not discuss, which will more important from your examination point of view. ठीक है. So why cryptocurrency is important for the global economy? First and foremost, financial inclusion. Gives people with bank accounts, especially in developing countries, access to financial services. ठीक है. Anyone with a smartphone and internet can store and transfer value. Suppose that कि कोई individual, there is some individual, मैं ही हूँ, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, हालांकि अगर पैसे नहीं होंगे तो माइनिंग तो पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा. बट somehow if I am able to solve a math puzzle, जहाँ कि मुझे बिटकॉइन एक मिल गया. Now I will have that money and that money is kind of, कोई भी अब उसमें एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, मुझे RBI से परमिशन नहीं चाहिए उस मनी को ट्रांजैक्ट करने के लिए. Now I am in the मेन स्ट्रीम. ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है और इसके लिए कुछ और नहीं चाहिए, मुझे बैंक अकाउंट्स नहीं चाहिए, कोई भी फिजिकल रिकॉर्ड्स नहीं है, मुझे किसी पर्टिकुलर बैंक में मेरा अकाउंट नहीं होना चाहिए. इफ़ आई हैव ए स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन अगर मेरे पास है तो आई कैन ट्रांजैक्ट इन क्रिप्टो करेंसी. अगर मेरे पास क्रिप्टो करेंसी आ गई है, देर आर लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर बाय रिमूविंग बैंक्स एंड इंटरमीडियरीज. ठीक है, अगर अभी आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर करेंगे मनी को तो यू हैव टू गो थ्रू ए लॉट ऑफ पेपर वर्क ऑल्सो, और वहाँ पे चार्जेस भी आते हैं, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस आर देयर. ठीक है, तो इन क्रिप्टो करेंसीज के केस में ऐसी चीज़ें, ऐसी इश्यूज नहीं आते हैं. देयर आर नो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस. इन क्रिप्टो करेंसीज का जो कॉस्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड वो सेम रहता है. दे आर फास्टर एंड चीपर रेमिटेंसेस, ह्यूज फॉर इकोनॉमीज दैट रिलाई ऑन फॉरेन वर्कर्स इनकम. Another important feature is that why it is important for global economy. Cryptocurrency leads to decentralization of finance, means it reduces dependency on central banks and traditional financial institutions. Power shift from government to users, peer to peer economy. अभी तक क्या है कि ना हमारी all the economies around the world is government regulated. क्यों? क्योंकि जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं बिना उनके परमिशन के यू कैन नॉट क्रिएट, ओके, और इन सम वे यू कैन नॉट ट्रांजैक्ट ऑल्सो. आप आपस में लेन देन नहीं कर सकते जबकि सेंट्रल बैंक आपको ऑथराइज नहीं करती उस मनी को यूज करने के लिए. आप अपने से मनी क्रिएट नहीं कर सकते. बट ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, काइंड ऑफ वेरी डिसेंट्रलाइज्ड. कोई भी इन सम जेनरिक सेंस आई एम सेइंग कि कोई भी इसे माइन कर सकता है जो भी कैपेबल है, और अगर ये जब माइनिंग एक बार हो गई तो एनीवन कैन यूज. देयर इज नो एनी रोल ऑफ एनी सेंट्रल बैंक रिक्वायर्ड हियर. इसको कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं चाहिए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट. पीपल, peer to peer means it transacted between people to people,
and it is based on trust between people to people. So no need of external trust, government regulated trust, so people can trust each other. How? कैसे करेंगे? क्योंकि we know that these cryptocurrencies are based on blockchain technology. This blockchain cannot be altered. So accordingly, अभी क्या हो गया इसके कारण? People can trust each other while transacting in cryptocurrencies. So this ultimately leads to decentralization of finance. Then innovation and digital economy growth. डिजिटल इकोनॉमी ग्रोथ के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए. सम न्यू इंडस्ट्रीज आर फाउंडेड, डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस, NFTs, मेटावर्स, वेरियस ब्लॉकचेन एप्स हैव बीन क्रिएटेड. These cryptocurrencies encourages entrepreneurship and job creation in tech, finance and creative sectors. Then safe haven in unstable economies. In countries with high inflation, example Venezuela, जिम्बाब्वे, इस तरह की कंट्रीज में जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशंस कभी कभी देखे जाते हैं, क्रिप्टो एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू व्हेन नेशनल करेंसी कोलैप्सेस. ठीक है, सपोज दैट कि अभी लोग हेवली रिलाई ऑन गोल्ड, कि अगर किसी देश की करेंसी डिवैल्यू होने लगी, सो इफ दैट पर्सन कन्वर्ट्स देयर वेल्थ इनटू गोल्ड, तो गोल्ड इज वैल्यूड लाइक अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक उसी तरह से ये क्रिप्टो करेंसी है. यू कैन ट्रीट क्रिप्टो करेंसी एज गोल्ड सॉफ्टवेयर गोल्ड सॉफ्टवेयर. यस, दैट इज द राइट टर्म. ठीक है, एक फिजिकल गोल्ड है, एक वर्चुअल गोल्ड. सो क्रिप्टो करेंसीज आर लाइक वर्चुअल गोल्ड, जिसको पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस है. ये कभी डिवैल्यू नहीं होती, और डिवैल्यू होती है तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक साथ होती है. किसी पार्टिकुलर इकोनॉमी में सिर्फ डिवैल्यू नहीं होगी, पूरे वर्ल्ड में एक साथ डिवैल्यू होगी. और अभी के टाइम में ऐसा देखा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी लगातार एप्रिसिएट हो रही है. रेदर देन गेटिंग डिवैल्यूड, इट्स गेटिंग एप्रिसिएटेड. सो इट्स काइंड ऑफ वर्चुअल गोल्ड. सो ऐसे अनस्टेबल इकोनॉमीज में दे प्रोवाइड काइंड ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड वेल्थ टू पीपल. ठीक है. एंड हाउ क्रिप्टो करेंसी कैन बी ए थ्रेट टू द ग्लोबल इकोनॉमी इन केस ऑफ एक्सट्रीम प्राइस वॉलेटिलिटी. ठीक, क्रिप्टो करेंसीज में आपने देखा होगा समटाइम्स इट गोज अप टू 1 बिटकॉइन. एक बिटकॉइन का वैल्यू कभी कभी 13 लाख 14 लाख रुपीस तक चला जाता है, एंड देन इट अगेन कम्स बैक टू 5 lakhs और 6 lakhs विद इन ए पीरियड ऑफ 1 month ओनली. तो अगर आप किसी ने अपने सारे वेल्थ को क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट कर दिया है, तो एक ही महीने में उसका वेल्थ आधा भी हो सकता है. कभी कभी ऐसा होता है कि विद इन 2 और 3 months वो नए हाइस पे चला जाता है कि नेक्स्ट फिर 25 लाख 26 लाख पहुंच जाएगा. ठीक है. सो देयर इज एक्सट्रीम वोलेटिलिटी. और सम ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज आर वेरी स्टेबल लाइक बिटकॉइन. लेकिन कुछ ऐसे भी क्रिप्टो करेंसी सब मार्केट में आ गई हैं, सो दे आर नॉट वेरी स्टेबल. आप अचानक एक दिन सोकर उठेंगे और पता चलेगा कि दैट क्रिप्टो करेंसी हैज सीज्ड टू एक्सिस्ट. अब वो है ही नहीं. सो दिस एक्सट्रीम प्राइस वोलेटिलिटी इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल फॉर एवरीवन. ठीक है. Prices swing wildly. Bitcoin can drop or rise 20% in a day. This makes it unreliable as a currency or store of value for everyday use. इसलिए इसको everyday use में use करने से पहले you'll have to give a lot of thought. Then again, this is a threat to monetary sovereignty. Governments can lose control over their own money system. अगर कॉमन पब्लिक आपस में ही एक मॉनेटरी सिस्टम इस्टेब्लिश कर दें, तो गवर्नमेंट का रोल और गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है अगर वो फॉलो नहीं होगा, तो उनका कंट्रोल गवर्नमेंट का कंट्रोल लूज हो जाएगा. सो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू गवर्नमेंट्स लीडिंग टू लॉस ऑफ देयर सोवरेनिटी. इफ सिटीजन्स मूव टू क्रिप्टो, सेंट्रल बैंक्स में स्ट्रगल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स. तो अभी क्या है कि सेंट्रल बैंक्स दे हैव ए वैरायटी ऑफ लॉट ऑफ मेजर्स. कभी भी इन्फ्लेशन हाई होता है या लो होता है, by the way of increasing interest rates by 0.5% or 1% maximum, वो कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को. दे सेंट्रल बैंक्स ट्राई टू कीप ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इन ए ब्रैकेट. लेकिन क्रिप्टो करेंसीज अगर डेली यूज में आने लगे, तो सेंट्रल बैंक्स का ये वाला फंक्शन बिल्कुल ही ओवर शैडो हो जाएगा, एंड देयर विल बी लाइक एनार्की एवरीवेयर. ठीक है.
And the most important threat, that money laundering and crime. अगर क्रिप्टो करेंसीज का यूज अधिक होने से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बढ़ जाएंगे, जो टेरर फाइनेंसिंग होता है वो काफी बढ़ जाएगा. इफ लाइक वेपन सप्लायर्स स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन, और जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अगर बिटकॉइन माइनिंग करने का कोई प्रोसेस डेवलप कर लिया तो क्या होगा? नो दे विल क्रिएट देयर ओन मनी एंड दे कैन डायरेक्टली परचेज वेपन्स फ्रॉम वेपन सप्लायर्स. तो अगर कोई ऐसा सिस्टम बन जाता है तो दैट विल बी डेट्रीमेंटल, कोई भी एक रीजन के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए. इलीगल ऑनलाइन मार्केट्स आर विल ऑल्सो थ्राइव अगर ये क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा यूज में होने लगे. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट कैन बी यूज्ड while writing a answer in a mains examination. Another threat क्या है? कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं है. अभी तो वी कैन गो टू लाइक सेंट्रल बैंक्स अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, बट उस केस में इन केस ऑफ बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसीज हमारे पास कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगा whom we can ask. ठीक है. लॉस्ट प्राइवेट की, लॉस्ट मनी फॉर एवर. अगर आपके पास आपका जो डिजिटल टूल्स है, प्राइवेट कीज आपको जो मिला हुआ है, what you have been assigned, अगर एक बार ये प्राइवेट की गुम हो गया तो कोई ट्रेल नहीं है, आपका मनी, पैसा भी हमेशा के लिए चला गया. देयर इज नो सिस्टम ऑफ रिफंड, चार्जबैक्स और लीगल सेफ्टी नेट्स इन मोस्ट केसेस, एंड स्कैम्स एंड रग पुल्स आर वेरी कॉमन. सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ, देयर विल बी नो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. इन्वायरमेंटल डैमेज भी होगा. हाउ? बिटकॉइन एंड सिमिलर नेटवर्क्स यूज मैसिव इलेक्ट्रिसिटी मोर देन सम कंट्रीज. मतलब कुछ छोटे देश जितना पूरे इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते हैं बिटकॉइन के माइनिंग में, उससे भी अधिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है. सो दिस रेजेस कंसर्न अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑल्सो. फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी विल बी देयर. सडन मार्केट क्रैश, जैसे कि फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज कोलैप्स हुआ था 2022 में, एंड दैट कैन लीड ऑल्सो टू ह्यूज इन्वेस्टर लॉसेस. और आप लगातार सुनते रहते होंगे न्यूज़ में कि कभी कोई क्रिप्टो एक्सचेंज है दैट गॉट हैक्ड और वहाँ से करोड़ों रुपए रातों रात चोरी कर लिए गए. सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. इफ बैंक्स और पेंशन फंड्स होल्ड क्रिप्टो एंड इट क्रैशेस, देन ब्रॉडर इकोनॉमिक डैमेज कैन अकर. सो कुछ ना कुछ अगर रेगुलेशन होना चाहिए. उसके बाद इस थ्रेट्स को कम करने के लिए देयर शुड बी सम रेगुलेशन जो कि इन थ्रेट्स को टैकल करे, एंड देन वी कैन सी दैट हाउ क्रिप्टोज कैन बी यूज्ड इन डे टू डे लाइफ. नाउ वी विल डिस्कस सम पॉपुलर क्रिप्टोज. बिटकॉइन का नाम आप सब लोगों ने सुना ही होगा. वेरी कॉमन और सबसे स्टेबल क्रिप्टो करेंसी में से जाना जाता है. द फर्स्ट एंड मोस्ट वेल नोन क्रिप्टो करेंसी क्रिएटेड इन 2009 बाय ए पर्सन और ग्रुप यूजिंग द नेम सतोशी नाकामोटो. सो लोगों को लगता है कि there are very theories regarding this person कि कोई actual person नहीं है सतोशी नाकामोटो, and there are a group of person who have created this cryptocurrency. People widely believe that China has created this Bitcoin to take lead in digital currency arena. So how it's used? Cryptocurrency is used. अब तो आपको पता होगा it's used store of value like digital gold for online purchase, cross border payments. इसके लिए Bitcoin का बहुत easily यूज होता है. and all this Bitcoin is also seen as a hedge against inflation in some of the countries. Then there is Ethereum. It's more than just a currency, it's a platform for building smart contracts and apps. 2015 में लॉन्च हुआ है. इसको हम लोग यूज करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में, ऑटोमेटिक एग्रीमेंट्स विदाउट मिडिलमैन, रनिंग डिसेंट्रलाइज्ड एप्स लाइक DeFi प्लेटफॉर्म, गेम्स, NFTs, and paying gas fees to use apps on Ethereum network. Tether, United USDT. Tether is another crypto, a stable coin. So its value is always close to $1. And this Tether is backed by real world assets like US dollar in theory. इसका यूज कैसे करते हैं? So this is used to like tether the value of other cryptocurrencies. उसमें वॉलेटिलिटी को ये रेगुलेट करता है. इट्स ऑल्सो यूज फॉर ट्रेडिंग. पीपल मूव मनी इनटू टेथर टू वेट फॉर प्राइस चेंजेस. दिस इज अगेन यूज्ड इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर्स.
Ripple, this is another cryptocurrency. This is designed for fast and cheap international money transfers used mainly by banks and financial institutions. Cross border payments के लिए यूज होता है. So tested by banks as an alternative to SWIFT. Cardano. Cardano is another crypto, a blockchain built with a research-based approach. It's focused on sustainability, scalability, and education. It's also used to running smart contracts, just like Ethereum. And Cardano is used in education, agriculture, and identity systems, especially in Africa. So हर एक क्रिप्टो करेंसी दूसरे से कैसे अलग है, इसके बारे में मैं जल्दी एक अलग वीडियो बना के आप लोग को बताऊंगा कि हाउ दे आर बेसिकली यूज. बट अभी एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ व्यू से बस आपको इतना डीप में नहीं जाना है कि क्रिप्टोस कैसे यूज होते हैं. जस्ट आप जान लीजिए कुछ क्रिप्टोस के नाम. बट इफ यू आर कीन टू नो तो यू कैन ऑल्सो गो सर्च इन इंटरनेट और कुछ क्रिप्टोस के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं वहाँ पे जाके. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट knowing the names of some popular cryptos and writing them when you are asked a question about cryptocurrency, that will do. I think that's going to be sufficient. Then another is Dogecoin. It was launched but originally considered a joke or meme, but became widely used. So this Dogecoin is backed by influencers like Elon Musk. This is used in tipping online creators, used for fund transactions, donations, and even some payments also. What's India's position on cryptocurrency? How India sees or tries to regulate cryptocurrency? Now this is another important aspect of cryptocurrency, particularly for BPSC mains or any other mains exam if you are writing. तो वहाँ पे आपको इंडिया का पोजीशन भी क्रिप्टोकरेंसी में बताना होगा. So here in brief we will discuss. So India does not recognize cryptocurrency as a legal tender like rupees, but it also hasn't banned it completely. तो ना ही रेगुलेट ना ही रिकॉग्नाइज किया है ना ही बैन किया है. देन व्हाट, वी जस्ट लेट इट बी ट्रेडेड. इंडिया जस्ट लेट इट बी ट्रेडेड. ठीक है. गवर्नमेंट अप्रोच हैज बीन कॉशियस, बैलेंसिंग इनोवेशन विद द नीड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, प्रिवेंट इलीगल यूज एंड मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. Between 2021 to 2022, some regulations were placed and some plans for taxing the cryptocurrencies was made. So government also worked on a cryptocurrency regulation bill, लेकिन अब वो अभी तक पास नहीं हुआ है. फिर 2022 के बजट में क्रिप्टो के प्रॉफिट्स पे 30% टैक्स जो लगाने की बात की गई, और अभी ये चल रहा है. मतलब अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होगा उस पर गवर्नमेंट 30% टैक्स लगाएगी. लॉस अगर होता है तो दैट विल बी कम्प्लीटली योर्स. 1% TDS इज देयर ऑन एवरी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन एंड नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस और सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम अलाउड. मीन्स किसी और लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, लॉस को डिडक्ट नहीं कर सकते, बट वॉट एवर प्रॉफिट यू विल मेक यू विल बी टैक्स्ड ऑन दैट प्रॉफिट. इसको ऐसे समझिए, सपोज दैट अगर आपने ओवर द अकाउंटिंग पीरियड आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया क्रिप्टो करेंसी पे और 1 लाख रुपए का लॉस भी किया, मीन्स ओवरऑल आप ना ही लॉस है ना ही प्रॉफिट है, नो लॉस नो प्रॉफिट पोजीशन पे आप खड़े हैं. बट हाउ गवर्नमेंट विल सी दिस ट्रेड्स दैट यू हैव मेड 1 लाख रुपीज प्रॉफिट, तो आपको उस पर 30% टैक्स देना होगा. मीन्स अगर आप 1 लाख का प्रॉफिट और 1 लाख का लॉस करके नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़े हैं, देन ऑल्सो यू हैव टू पे 30% टैक्स. मीन्स आपका ओवरऑल लॉस विल गो टू लाइक 1,30,000. ठीक है. तो 30% टैक्स ऑन प्रॉफिट, वॉट एवर प्रॉफिट यू मेड. सो व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड इंडियाज रेगुलेशन? सी, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉड एंड स्कैम्स. ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो गोल है गवर्नमेंट का, क्योंकि इंडियन पब्लिक आर वेरी गलिबल राइट नाउ ऑल्सो. अभी मतलब लोगों को बस उन्हें पता तो होता है कि बिटकॉइन कुछ है, लेकिन अगर वो हड़बड़ी में आके बहुत सारे ऐसे भी क्रिप्टोज आ गए हैं जो बिटकॉइन के कंपैरिजन में काफ़ी चीप हैं और लोग उनको खरीद लेते हैं और रातों रात उन्हें पता चलता है कि अगले दिन वो क्रिप्टो कॉइन अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. अब दूसरा केस क्या है कि बहुत सारे क्रिप्टोज अभी आपने देखा, जैसे फॉर द एग्जाम्पल टेथर है, कार्डानो है. सो देयर फंक्शन इज नॉट सिमिलर टू बिटकॉइन. ठीक है. देयर इज नॉट पार्टिकुलरली देयर स्टोर ऑफ वेल्थ और स्टोर ऑफ वैल्यू. तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर अलग अलग क्रिप्टो का यूज क्या है,
उसे कब खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सो तो जब तक पीपल इतने अवेयर नहीं हो जाते कि क्रिप्टो करेंसी के कंसेप्ट, उसके यूजेस, उसके थ्रेट्स को अच्छे से समझे, सो तब टिल देन रेगुलेशन शुड बी प्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज एक्चुअली गुड मूव। So tax revenue from growing crypto transactions, prevent money laundering and terror financing, ये सब इंडिया का ऑब्जेक्टिव है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के पीछे, एंड टू अवॉइड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड ऑल्सो सपोर्ट इनोवेशन ब्लॉकचेन बट नॉट वाइल्ड स्पेकुलेशन। ट्रेडिंग में जनरली वाइल्ड स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब किसी दिन अगर इथीरियम का ट्रेड होता है, ऑल द क्रिप्टो करेंसीज आर नॉसी, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं सब किसी न किसी एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, और लोग बस एक अकाउंट बना के किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद ले रहे हैं, उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि उसका बेसिक फंक्शन क्या है, लेकिन उसमें ट्रेडिंग का वॉल्यूम काफ़ी हाई हो चुका है। सो टू वाइल्ड स्पेकुलेशन, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन ना हो, उसको रोकने के लिए भी गवर्नमेंट ने इस क्रिप्टो पे इतना रेगुलेशन किया है। ठीक है। सो इज क्रिप्टो लीगल इन इंडिया? सी, क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग, होल्डिंग एंड इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी इज लीगल बट इट इज नॉट ए लीगल टेंडर। मतलब क्या है, इसमें हम ट्रेड तो कर सकते हैं बट लाइक कन्वेंशनल मनी ये लीगल टेंडर नहीं है। यू कांट यूज बिटकॉइन और इथेरियम टू बाय गुड्स इन ए शॉप। ठीक है। However, लेकिन अगर शॉपकीपर एग्री है कि अगर बिटकॉइन में आपसे पेमेंट ले रहा है, ही इज ऑल्सो इंथुसियास्ट, यू आर ऑल्सो इंथुसियास्ट, एंड इफ यू बोथ एग्री टू ट्रांजैक्ट इन बिटकॉइन, और जहाँ पे वो मुझे सामान प्रोवाइड कर रहा है और गुड्स और सर्विसेज इफ आई एम एबल, तो वहाँ पे ट्रांजैक्ट होगा। मीन्स गवर्नमेंट हैज नॉट कंसिडर्ड क्रिप्टो करेंसी इज ए लीगल टेंडर, बट इफ पीपल वांट बिटवीन देम, पीपल अंडरस्टैंड एंड दे एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी इज ए लीगल टेंडर, सो दैट इज acceptable. So in a case, cryptocurrency is legal in India but not legal tender by the government. It's regulated by taxation but not fully legalized or licensed yet. India sees cryptocurrency as an asset to monitor and tax and not a replacement for the rupee. Our focus is on regulating its use, ensuring tax compliance and developing a digital currency as a government backed initiative. तो क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ अब गवर्नमेंट, हर एक सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ अपने एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक ने भी अपना एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। इफ यू नो द नेम प्लीज राइट इन कमेंट। सो नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस मींस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। Examine the regulatory challenges posed by cryptocurrencies in India. What steps has the government of India taken to regulate this sector? Suggest suitable policy measures. Second question is, what is blockchain technology? Explain its role in the functioning of cryptocurrencies. How can it be used beyond cryptocurrencies in governance and public service delivery? So these are questions for practice. आप लोग क्या कर सकते हैं? You can write answers to these questions. And then you can join this channel. Our channel is in Telegram. वहाँ पे आप अपने आंसर्स को पोस्ट कर सकते हैं, and then our experts we will together try to evaluate your answer and try to assess. Thank you. We'll meet with another video on science and technology with another new topic. Thank you.